اپڈیٹ کریں کہ اوتھل کے قریب مسافر کوچ میں آگ لگ گئی ہے. 4 مسافر جاں بحق جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو ٹیمز کی جانب سے 7 زخمیوں کو کوچ سے نکال دیا گیا ہے. کوچ میں 28 مسافر سوار تھے. کئی افراد نے کود کر جان بچائی. مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس واقعے سے متعلق کہ اوتھل کے قریب مسافر کوچ میں آگ لگ گئی ہے. 4 مسافر جاں بحق جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو ٹیمز کی جانب سے 7 زخمیوں کو کوچ سے نکال دیا گیا. کوچ میں 28 مسافر سوار تھے جبکہ کئی افراد نے کود کر جان بچائی. مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی. ادھر بارکھان میں کوہ جانداران کے پہاڑوں میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی ہے. کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. کوہ جانداران کے قریب گیس کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں. آگ گیس کے ذخائر کے قریب پہنچ گئی. جنگلی حیات، درخت اور گیس کے ذخائر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ. تاحال آگ بجھانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد میں گیس سلنڈر دھماکے کے مزید 5 زخمی دم توڑ گئے ہیں. واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 23 ہو گئی. 30 مئی کو حیدرآباد میں گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 62 افراد زخمی ہو گئے تھے. زخمیوں میں زیادہ تر تعداد بچوں کی تھی. واقعے کے 33 شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کیا گیا تھا جبکہ دیگر زخمی حیدرآباد کے ہسپتال میں ہی زیر علاج تھے. اور شاہین آج امریکہ کے خلاف میچ سے T20 ورلڈ کپ مہم کا آغاز کریں گے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. آل راؤنڈر عماد وسیم سائیڈ سٹرین کا شکار ورلڈ کپ کے پہلے میچ سے آؤٹ ہو گئے ہیں. گرین شرٹ نے ڈیلس میں کی پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. ٹیم کے لیے بری خبر، عماد وسیم امریکہ کے خلاف پلئنگ 11 میں جگہ نہیں بنا سکیں گے. وہ اسٹرین انجری کا شکار ہیں. امریکہ نے پہلے میچ میں کینیڈا کو بآسانی شکست دی تھی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز فخر زمان کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف جو کھلاڑی پرفارم کرتا ہے وہ سٹار بن جاتا ہے، جس کی مثال میں خود ہوں. انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ کے تمام میچز اہم ہوں گے. پاک بھارت میچ امریکہ کے لوگوں کے لیے نیا تجربہ ہوگا. ICC کے ایونٹس میں شرکت کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. ہم کسی بھی چیلنج کو قبول کرتے ہیں. قومی ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ بطور پروفیشنل کھلاڑی کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹیم کا ماحول بہت اچھا ہے اور ہماری ٹیم میں بہترین کھلاڑی بھی موجود ہیں. ہم یہاں جیتنے آئے ہیں اور ہر میچ جیتنے کی کوشش بھی کریں گے. ورلڈ کپ میں غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی ہے. ہمیں ہر میچ میں پرفارم کرنا ہوگا. ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ہم اچھا پرفارم کریں گے. شاداب خان اور اعظم خان دونوں ہی بہترین صلاحیت کے حامل کھلاڑی ہیں. ہمیں اپنے پلان کا پتہ ہے اور ہر کھلاڑی کو اس کا اپنا رول بھی پتہ ہے. T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے اپنے پہلے ہی میچ میں آئرلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی. آئرلینڈ کی ٹیم صرف 96 رنز ہی بنا سکی. بھارت نے مطلوبہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. کچھ سیاسی خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ قرض لینے نہیں، کاروبار اور ترقی کے لیے چین آئے ہیں. وزیر اعظم کا دورہ چین پر واضح پیغام. شینزین میں پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں ورکرز کی حفاظت یقینی بنائیں گے. شینزین میں پاکستان اور چینی کمپنیز کے مابین بھاری سرمایہ کاری کے معاہدے طے پا گئے ہیں. چینی حکام نے وزیر اعظم کو شینزین کی ترقی کے سفر بارے تفصیلی بریفنگ بھی دی. ملکی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے وزیراعظم متحرک. شہباز شریف کے دورہ چین پر سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز. شینزن میں پاک چین بزنس کانفرنس میں تاریخی لمحات. ڈپلائے گروپ اور چینی ٹیکنالوجی کمپنی میں اہم معاہدہ طے پا گیا. پاکستان میں جدید ترین R&D لیب کے قیام کے لیے چینی ٹیکنالوجی پارٹنر کے ساتھ MOU پر دستخط ہو گئے. پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب میں وزیراعظم نے پاکستانی سرمایہ کاروں کو چینی ماڈل اپنانے پر زور دیا. کہا چین نے مختصر مدت میں بے مثال ترقی کی. چین میں کرپشن ختم ہو گئی. پاکستان میں کرپشن پر قابو پایا جا رہا ہے. Huge achievements of President Xi Jinping is number one, he almost erased corruption from the face of China. Number two, take out 700 million people out of depth of poverty. Number three, he invested
in the youth of China. Hundreds of millions of Chinese boys and girls were empowered, and this investment, more than $25 billion worth investment, was committed in Pakistan by Chinese investors. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शेंजन में हवावे हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। कंपनी हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द को ब्रीफिंग दी। चीनी कंपनी के चेयरमैन जू जाओ जियांग ने पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़रा जाम कमाल और अब्दुल अलीम खान ने भी चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें की और मुख्तलिफ शोबों में भारी सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए। चीनी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में ज़राअत, फर्टिलाइजर, IT, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर और फाइबर के शोबों में सरमायाकारी होगी। और पाकिस्तान में चीन के गुडविल एम्बेसडर आमिर अली ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के साथ चीन के दौरे की बड़ी अहमियत है। इस दौरे के दौरान अरबों डॉलर के मुआहदे किए जाएंगे, जिससे CPEC के दूसरे फेज के हवाले से पाकिस्तान में मुश्तरका सरमायाकारी भी होगी। सरमायाकारी किन शोबाजात में होगी और इससे पाकिस्तानी मईशत को क्या फ़ायदा हासिल होगा, जान लेते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपनी वफ्द के साथ इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और ये वो इस हवाले से मौजूद हैं कि CPEC का दूसरा फेज जो है उसको तकमील तक पहुँचाना है और वहाँ पे कुछ मुआहदे हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाइना से पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के गुडविल एम्बेसडर हैं आमिर अली साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये इससे ज़्यादा और कोई शायद बेहतर ना बता सके कि अब तक कितने मुआहदे हुए हैं और किस तरह के हुए हैं और मज़ीद कितने मुआहदे होने जा रहे हैं। जी प्राइम मिनिस्टर ने आज जो अपना विजिट शुरू किया है, सुबह से उन्होंने B2B 2 कॉन्फ्रेंसेस तो की हैं। उसमें से एक सबसे अहम है, दैट इज़ द स्वैपिंग ऑफ द करेंसी। स्वैपिंग ऑफ द करेंसी मींस कि आप अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट करेंगे। एक एग्रीमेंट हुआ है जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ चाइना के दरमियान आज हुआ है। इट वर्थ फॉर 200 बिलियन RMB। तो इतना बड़ा एक तो ये सक्सेस है कि आपको डॉलर डिपेंडेंसी से निकालने के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी। अगले 3-4 साल हम इसी के दौरान जो है हमारी मीशत, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाए, हमारी मीशत, हमारा बजट जो डेफिसिट है, हमारे जो ख़ास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दरमियान बैलेंस नहीं है, वो भी बेहतर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान UN की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए पुरुमीद है। UN की जनरल असेंबली UNSC के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का तकर्रुर आज करेगी। पाकिस्तान के अलावा दीगर 4 मेंबरान अगले 2 साल के लिए खदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियाई ग्रुप से तौसीक मिली है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती, फ़लस्तीन और कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत पर तवज्जो देगा, जबकि अफगानिस्तान में बेहतरी, अफ्रीका में सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुनसिफाना हल को फ़रोग़ देने पर भी तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन तब्दीली के लिए दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। नून लीग के MNAs ने ट्रिब्यूनल तब्दील करने की इफ्तिदा की थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन तब्दीली के लिए दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग सेशन तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, पाकिस्तान से बच्चों की अमेरिका स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार सारिम बर्नी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में सारिम बर्नी पर नौमौलूद हया नामी बच्ची को अमेरिका स्मगल करने का इल्जाम आयद किया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी ने हया नामी बच्ची को मुबैना तौर पर उसके वालिदैन से 10 लाख रुपए में खरीदा था, जिसके लिए सारिम बर्नी की 1 से ज़ायद अफराद ने मुआवनत की। हुकाम का कहना है कि बच्ची के वालिदैन इंतहाई गरीब हैं। उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि FIA के मुताबिक सारिम बर्नी ने 1 साल में 20 नौमौलूद बच्चों को अमेरिका में गोद लेने के नाम पर स्मगल किया है, जिनमें 15 से ज़ायद लड़कियां शामिल हैं। अमरीकी तहकीकाती इदारे भी छानबीन कर रहे हैं।
जबकि सालिम बर्नी को आज अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अपडेट करें आपको, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग सेशन तलब कर लिए हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज, सेनेट का इजलास कल 10:30 बजे होगा, जबकि सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत किया गया है। तलब करदा सेशन में आइंदा माली साल का बजट भी मंजूर कर लिया जाएगा। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्की है। कराची का टेम्परेचर 36 डिग्री तक पहुंच सकता है और समंदरी हवाएं भी बहाल रहेंगी। उधर लाहौर में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई भी सामने आई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है लाहौर के मौसम की, हमें बताएंगे तैयब बेग। जी तैयब। शहर लाहौर के मौसम की तो हल्की हल्की हवा ने जो मौसम है वो खुशगवार कर दिया है। अगर बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब की, तो शहर लाहौर के अंदर इस वक्त जो हवा का नमी का तनासब है वो 62% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के अंदर आइंदा जो बारिश के इम्कान है वो भी दोपहर के वक्त ज़ाहिर किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो घरों से निकलते वक्त जो है वो कपड़े का इस्तेमाल करे, सर को ढांक पर निकले, उसके साथ साथ ग्लासेस का भी इस्तेमाल करे ताकि जो गर्मी है उससे बचा जा सके। शुक्रिया तैयब, आपने हमें अपडेट किया। कोयटा में ज़िला इंतजामिया की जानिब से आटे की कीमतों में कमी के पेश नज़र 280 ग्राम रोटी की कीमत में 10 रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद रोटी की कीमत 40 रुपए से कम होकर 30 रुपए हो गई। जबकि तंदूर एसोसिएशन ने 5 रोज गुजर जाने के बावजूद रोटी की कीमतों में कमी नहीं की है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात हमाद अली से जान लेते हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद के साथ ही मौजूद हैं। जी हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके मुताबिक 280 ग्राम की रोटी जो है 30 रुपये मुकर्रर की गई थी। ताहम जो बेकरी के आइटम्स थे उनकी कीमतों में भी कमी लाई गई है। सर, डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या बताते हैं इसकी वजह? जी देखें, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जब ये प्राइसेस कम हुई फ्लोर की, तो उसके बाद पंजाब में भी और बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं उसमें भी रोटी की प्राइसेस कम की गई। हमारे पास 2 किस्म के ग्रुप्स आते हैं। एक ग्रुप है जो कहते हैं कि सर हम आपकी बात से एग्रीड है, बस इसके अंदर आप सिंगल और डबल रोटी की प्राइस कर दें, तो ताकि जैसे बाकी पाकिस्तान में उसी तरह आप कोयटा के लिए भी कर दें। तो उसको भी हम अंडर कंसिडरेशन हमने रखा हुआ है, तो उस चीज़ को भी हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, हम 2 हम आज अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। नेट मीटरिंग के हवाले से भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की वजाहत, कहा कि हुकूमत मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जो भी पॉलिसी के अंदर तरमीम लाई जाएगी उसके अंदर किसी जगह के ऊपर अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसके अंदर पैनल के ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी, किसी किस्म के टैक्स लगाने की बात हो, या जिन दोस्तों ने अपने घरों के ऊपर ये पैनल्स लगा लिए उनसे किसी किस्म का टैक्स लगा के उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई पैसा इकट्ठा किया जाए। जो भी आगे जो पॉलिसी के अंदर रिविजन होगी उसके अंदर मशावरत के साथ और शहबाज शरीफ साहब के जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है उसको जहन में रखते हुए